Hello student, this is Fazan sir. I am going to start class 12th biology chapter 3rd, the human reproduction. This is my second lecture from this chapter. In this lecture we are discuss about the human reproductive system. As we know, the human are known as unisexual. It means only a single sex present in a single body. Male and female consist of both different type of sex present on the different body. So human also known as dioecious organism. Now today we are discuss about the different type of reproductive system present in case of human. As we know, in case of flower, anther and stamen are known as the male part of the flower. In the same way, today we are discuss about the different type of sexual parts that are present in case of human male. So on the base of reproductive system, there are two different type of sex organs present in case of human. Number one, primary sex organ. Number two, secondary sex organ. The primary sex organ in case of male are known as testes, that are responsible for process of formation of male gamete. It means sperm. Now the secondary sex organ are the types of organ that provide the support to the primary sex organ. By the help of this support, primary sex organ perform their activities. They are divided into three different parts. Number one, accessory ducts. Ducts means pipelines. The number of ducts are present in case of male, which is known as vas deferentia, vasa efferentia, retate testis, vasa efferentia also known as the vas efferens, urethra, ejaculatory duct, collecting duct, fimbriae. These are the different types of duct that are reported in case of human male. Now accessory gland, that there are three types of gland reported in case of male, that is seminal vesicle, prostate gland and corpus gland. Corpus gland also known as the bulbourethral gland. Now the third, that is known as the external genitalis. External genitalis, it means the types of sex organ that are present outside the body. So penis, that are known as the copulatory organ. By the help of this, a female perform the process of copulation or fertilization. And second one is scrotum. Scrotum are pouch like structure that are present around the testis, where the testes are present. It is present outside the body and maintain the less than 2 degrees centigrade temperature than the body, because it is the condition required for the production of male gamete, it means sperm. तो अब देख लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर मेल बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होते हैं और किस तरह के ये विजुअल होते हैं. सो दीज डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन दैट आर प्रेजेंट इन केस ऑफ मेल. तो आप इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन देखने में कैसे होते हैं और ये इनके फंक्शन क्या हैं. Here the diagram are show it represent the section view of pelvic region of male reproductive system. इसके बेस पे आपके एग्जाम में टू डिफरेंट टाइप के डायग्राम पूछे जाते हैं. अगर उसने लिखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द पेल्विक रीजन, तो आपको ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है. अगर उसने लिख दिया टू शो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इनर पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो अगर इनर पार्ट यूज़ किया उसने, तो आपके एनसीईआरटी में जो सेकंड डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम लोग ड्रॉ करेंगे. ये इनर सेक्शन व्यू शो कर रहा है, जबकि ये क्या है, केवल पेल्विक रीजन के ही स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है. तो अगर पेल्विक रीजन करके आता है एग्जाम में, तो हम लोग ये डायग्राम शो करना होता है. अगर इनर पार्ट पूछता है तो हम लोग को इसके नीचे वाला डायग्राम शो करना होता है. तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. इन केस ऑफ मेल, टेस्टिस आर नोन एज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. अब इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दोज ऑर्गन वेयर द मेल एंड फीमेल वेयर द गैमेट्स आर सिंथेसाइज. तो ह्यूमन के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होता है. स्पर्म कहाँ फॉर्म हो रहा होता है? टेस्टिस के अंदर फॉर्म हो रहा होता है. सो टेस्टिस आर नोन एज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन केस ऑफ मेल. These testes are covered with a
pouch like structure. This pouch like structure are known as scrotum. It is present outside the body and outside the pelvic region. ये जो होती है pelvic region से बाहर की तरफ निकली रहती है स्क्रोटम. अब ये स्क्रोटम का वर्क क्या होता है? स्क्रोटम मेंटेन 2 डिग्री लेस 2 or 2.5 less body temperature inside the testis, because for the process of formation of sperm we have required 2 degree less temperature than our body. हमारे बॉडी से जो बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करने का काम कौन कर रहा है? हमारा स्क्रोटम कर रहा है. ये स्क्रोटम बॉडी के बाहर तरफ रहेगा, पाउच स्ट्रक्चर में रहेगा. अब इस पाउच में होने की वजह से क्या होता है कि ये अपना टेम्परेचर मेंटेन कर पाता है, जिससे कि ये अपने आप का टेम्परेचर को कम रह सके और ईजिली स्पर्म की सिंथेसिस हो सके. अगर यहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा तो उस हाई टेम्परेचर में स्पर्म की डेथ हो जाएगी और वो स्पर्म फॉर्मेशन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी और स्पर्म फॉर्मेशन पूरी तरह से रुक जाएगा. नाउ द टेस्टिस की जो साइज होती है वो 5 to 10 सेंटीमीटर इन लेंथ होगा. उसकी लेंथ होती है वो 5 से लेकर 10 सेंटीमीटर की होती है, वाइल डायमीटर इज अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर. तो 2 to 3 सेंटीमीटर लुक लाइक अ एग. जैसे एक एग दिखता है वैसा सेम दिखता है भी. यहाँ पे जो लेंथ होती है वो 5 to 10 सेंटीमीटर की हो सकती है और इसकी डायमीटर होती है वो कितनी होती है? 2 to 3 सेंटीमीटर की डायमीटर होती है. अब इसके बाद ईच टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ 200 to 250 टेस्टिकुलर लोब. इन केस ऑफ मेल देयर आर 2 टेस्टिस आर प्रेजेंट इन विच 1 टेस्टिस कंसिस्ट ऑफ 200 to 250 testicular lobe and each testicular lobe consist of 1 to 3 seminiferous tubule. जितने टेस्टिकुलर लोब यहाँ पे बन रहे हैं यहाँ पे सभी में 1 से लेके 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं. इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि टेस्टिकुलर लोब क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है. नाउ दिस टेस्टिकुलर लोब डायरेक्टली अटैच विद द एपिडिडाइमिस. ये डायरेक्टली अटैच रहते हैं एपिडिडाइमिस से. एपिडिडाइमिस आर द प्लेस वेयर द स्पर्म आर मैच्योर एंड स्टोर. द मेन फंक्शन ऑफ एपिडिडाइमिस टू स्टोर द एक्सेस अमाउंट ऑफ स्पर्म. ह्यूमन मेल के अंदर जो स्पर्म फॉर्मेशन हो रही है उसमें काफ़ी हाई अमाउंट में स्पर्म बनते हैं. अब उस स्पर्म को स्टोर करने का काम कौन करता है? एपिडिडाइमिस करता है. नाउ इट इज अ पाइपलाइन आर विजिबल दैट आर नोन एज द वास्ट डिफरेंस इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ. जो वास्ट डिफरेंस होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर की होती है. नाउ दिस वास्ट डिफरेंस कंप्लीटली कवर द यूरिनरी ब्लैडर एंड ओपन इनटू द इजैकुलेटरी डक्ट. ये वास्ट डिफरेंस ऊपर से कवर करते हुए एपिडिडाइमिस में इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन हो जाती है, जहाँ पे ये कवर कर रही है यूरिनरी ब्लैडर को. यूरिनरी ब्लैडर स्टोर द यूरिन of our body. This urine are collected by the ureter where it is directly attached with the kidney. ये किडनी से यूरेटर थ्रू जुड़ा रहता है और ये यूरेटर जो होती है यूरिन को लेके आती है और यूरिन ब्लैडर में स्टोर कर देगी. अब जो वास्ट डिफरेंस होती है इसके ऊपर से होते हुए बैक साइड से आगे ये डायरेक्टली ओपन होती है इजैकुलेटरी डक्ट में. और दिस इजैकुलेटरी डक्ट इज लुक लाइक अ पाइपलाइन स्ट्रक्चर एंड दिस पाइपलाइन ओपन इनटू द urethra. This ejaculatory duct are covered with 2 glands that are known as the seminal vesicle gland and prostate gland. अब ये 2 ग्लैंड जो होती है यहाँ पे अलग अलग तरह के ग्लैंडुलर सिक्रीशन कर रही होती है. सेमिनल वेसिकल ग्लैंड सिक्रीट द क्लॉटिंग प्रोटीन्स, फ्रक्टोज एंड प्रोस्टाग्लैंडिन that are responsible for provide the nourishment to the sperm. यहाँ से क्या हुआ? स्पर्म सेल मूव कर रही है. अब ये स्पर्म सेल मूव करने के साथ साथ आगे जा रही होती है. अब जब यहाँ तक ये स्पर्म सेल पहुँचेगी तो स्पर्म सेल का लुब्रिकेशन स्टार्ट हो जाता है. लुब्रिकेशन मतलब कि इसके चारों तरफ एक लिक्विड पार्ट से कवर करने लगते हैं. अब लिक्विड पार्ट कवर क्यों कर रहे हैं? पहली चीज़ यहाँ पे जो हमारा सेमिनल वेसिकल है, ये सेमिनल वेसिकल नरिशमेंट प्रोवाइड करता है इसको.
स्पर्म सेल यहाँ से निकले, जब तक इसके अंदर थे टेस्टिस के अंदर, तो टेस्टिस के अंदर उनको फूड मिल रहा था, नरिशमेंट उनकी हो रही थी। अभी पाइपलाइन में आ गया, पाइपलाइन के थ्रू क्या हो रहा है, खाली ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे। अब इस पाइपलाइन में ट्रांसफर हो रहा, जब ये हो रहे होते हैं तो इनके साथ कुछ लिक्विड सब्सटेंस, कुछ ग्लैंड अपना लिक्विड सब्सटेंस सिक्रेट करती है, जिसके अंदर इनके फूड मटेरियल भी होते हैं और प्रोटेक्टिव केमिकल्स भी होते हैं। अब वो क्या होते हैं इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सेमिनल वेसिकल क्या कर रही है, नरिशमेंट काम कर रही है। नरिशमेंट के बेस पे इमोशनली फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेट कर रही है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन और फ्रक्टोज एक लिक्विड सब्सटेंस जिसमें जो कि स्पर्म के चारों तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक दो स्पर्म तो है नहीं, मिलियंस पे स्पर्म होते हैं। वो स्पर्म क्या हुए, इस लिक्विड पार्ट में कवर हो गए। नाउ दिस लिक्विड पार्ट कम्स इनटू द इजैकुलेटरी डक्ट। अब ये लिक्विड पार्ट इजैकुलेटरी डक्ट में आ गया। अब इजैकुलेटरी डक्ट से होता हुआ जब ये पहुंचता है प्रोस्टेट ग्लैंड के पास, तो प्रोस्टेट ग्लैंड अगेन सीक्रेट सम केमिकल्स दैट आर एल्कलाइन सब्सटेंस। यहाँ पे इसके अंदर कुछ एल्कलाइन सब्सटेंस मिला दिए जाते हैं। इसके अलावा दे आर कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट आयन दैट एक्ट्स एज अ बफरिंग एजेंट ऑफ दिस स्पर्म। नाउ it also mix the amylase and pepsinogen. Amylase, pepsinogen, alkaline substance और कैल्शियम फास्फेट आयन, ये सब कुछ मिला जाते हैं। दे आर लुक लाइक मिल्की इन कलर, जैसे मिल्क होता है वैसा ये मिल्की स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। नाउ दिस स्ट्रक्चर आर नोन एज सीमेन। सीमेन में क्या है, लिक्विड पार्ट है और उस लिक्विड पार्ट के अंदर क्या है, स्पर्म पड़े हुए हैं। एंड सीमेन आर एल्कलाइन इन नेचर। ये सीमेन होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है, यानी कि बेसिक नेचर का होता है। क्योंकि इसके बाद इनको कहाँ जाना है, फीमेल बॉडी के अंदर जाना है। फीमेल बॉडी के अंदर एसिडिक कंडीशन होती है, तो जब ये बेस और एसिड मिलते हैं तो वहाँ पे न्यूट्रल कंडीशन फॉर्म हो जाती है। वो न्यूट्रल कंडीशन स्पर्म को मैच्योर करने के लिए, स्पर्म को कंटेन करने के लिए सुटेबल है। इसलिए यहाँ पे बेसिक सब्सटेंस प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू यहाँ पे मिक्स किए जा रहे हैं। अब क्या होगा, ये स्पर्म आगे बढ़ेगा। थर्ड ग्लैंड दैट आर नोन द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड। द मेन फंक्शन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स एंड कॉपर्स ग्लैंड इज दैट टू प्रोवाइड द लुब्रिकेशन टू द यूरेथ्रा। अब इसके बाद जो पाइपलाइन आगे बढ़ रही है, ये पाइपलाइन का नाम क्या दिया गया, यूरेथ्रा दिया गया। अब इसका नाम यूरेथ्रा क्यों दिया गया, बिकॉज इट प्रोवाइड द कॉमन ओपनिंग फॉर यूरिन एंड स्पर्म। यहाँ पे स्पर्म और यूरिन दोनों एक ही रास्ते से आ रहे हैं, दोनों का सेम वे है। सो दिस पाइप आर नोन एज द यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा से होते हुए स्पर्म बॉडी से बाहर निकल जाते हैं थ्रू पेनिस। पेनिस आर नोन एज द कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ मेल। दिस पार्ट आर एंटर इनटू द फीमेल यूरेथ्रा वेजाइना थ्रू द मेल। दिस पेनिस आर कवर्ड विथ अ लूज स्किन। यहाँ पे एक लूज स्किन पाई जाती है ऊपर, जो उसको कवर की रहती है। नाउ द आउटर पार्ट ऑफ पेनिस आर swell and this swell up region are known as the glans penis. इस swelling part को हम लोग बोलते हैं glans penis. Now this glans penis again covered with foreskin. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्किन होती है, इसको लोग बोलते हैं foreskin. foreskin के थ्रू क्या होता है, ये कवर रहता है। The opening of urethra are known as the urethral matue. urethral opening बोल सकते हैं इसको हम लोग, या urethral matue बोलते हैं। Through this sperm are ejaculated out through the body. In the same way, urine also ejaculated from the penis. Now we are discuss about the testicular lobe and number of duct which are present here. Now I am going to discuss about the internal structural organization in case of testis. As we discussed earlier, the testis is about 4 to 5 centimeter in length and 2 to 3 centimeter in diameter. It look like a oval egg-shaped structure. Now this whole testis are covered with 3 different layers that is known as the testa albigans, testa
vestibulata, testa, vagalis. Their 3 layers are covered with the testis, and the third testa vagalis only cover the half part of testis. Now each testis consists of 100 to 250 testicular lobe are present. Each testicular lobe consists of near about 3 seminiferous tubules. Here the 3 seminiferous tubules are visible. Now these 3 seminiferous tubules are covered with each testicular lobe, and this testicular lobe open into the fimri. Here the number of fimri are present. These fimri are collect the sperm from number of seminiferous tubule, and this seminiferous tubule open into the testicular lobe, and now this testicular lobe open into the fimri. Now this is the number of fimri that collect the sperm from the testicular lobe. Now this fimri again open into the rete testis. The rete testis, this is rete testis. The whole part are known as the rete testis. This rete testis collect the sperm from the fimri. Now this fimri open to the rete testis, and rete testis directly attach with the vas efferentia. Vas efferentia and vas deferens, they are the two different terms that are mostly asked in your board examination. Vas efferentia और vas differentia में difference क्या होता है? So vas efferentia, it is the type of pipeline connection that are present between the testis and epididymis that collect the sperm from testis and transfer into the epididymis, that are known as the vas efferentia. While vas differentia is also a type of pipelines that collect the sperm from epididymis and transfer the sperm to the urethra. ये epididymis sperm को उठा रहा है, ले रहा है, और लेने के बाद यूरेथ्रा को ट्रांसफर कर रहा है, vas डिफरेंस। जबकि vas efferentia क्या कर रही है? vas efferentia टेस्टिस स्पर्म को ले रही है और epididymis को ट्रांसफर कर रही है। नाउ epididymis again divide into 3 major part: corpus epididymis, cowpet, corpus and cauda. These 3 parts are combined known as the epididymis. Cowpet epididymis are the first part of epididymis where the sperm are mature and get motility. अभी तक जब तक स्पर्म टेस्टिस के अंदर था तब तक उसके अंदर मोटिलिटी नहीं थी, वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाया था। जैसे ही वो फर्स्ट पार्ट में आता है कॉपेट एपिडिडाइमिस में, ये स्पर्म कंप्लीटली मैच्योर कर जाता है और मैच्योर होने के बाद इसके अंदर मोटिलिटी भी आ जाती है। नाउ सेकंड, कॉपस एपिडिडाइमिस, इट इज द एरिया वेयर द स्पर्म आर स्टोर। यहाँ पे स्पर्म को स्टोर किया जाता है। नाउ द थर्ड, cauda epididymis. Cauda epididymis directly attached with the vas deferens that are responsible for transfer the sperm from vas deferens to from epididymis to vas deferens. इनका ये काम है कि स्पर्म को लेना और लेने के बाद vas deferens को ट्रांसफर कर देना। अब जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल अरेंज रहती है पाइपलाइन मैनर में। ये भी पाइपलाइन मैनर होगा, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होगा। अगर इसको हम लोग कट करके देखें तो कट करने में हम लोग को कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर विजिबल होता है। ये हमारी नंबर ऑफ पाइपलाइन स्ट्रक्चर दिख रही है जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की पाइपलाइनें हैं। अब इस पाइपलाइन को हम लोग कट करें तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इसका इस तरह से हम लोग को विजिबल होता है। यहाँ पे हम लोग को सर्टोली सेल, स्पर्मेटोगोनिया सेल, लिटिक सेल दिखाई पड़ती है। तो सर्टोली सेल प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म सेल और डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया सेल, इनको फूड प्रोवाइड करने काम करती, नरिशमेंट काम करती है स्पर्म के। स्पर्मेटोगोनिया सेल क्या करती है? लगातार डिवीजन करती है और स्पर्म सेल फॉर्म करती है।
लेडी सेल का काम क्या है? लेडी सेल एंड्रोजन हार्मोन सीक्रेट करती है, एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्मेटोगोनिया सेल को एक्टिवेट करने के लिए, एंड आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन केस ऑफ मेल. Now we are talk about the different layer which are present around the testis. Now I'm going to talk about the number of layers that are present around the testis. The first layer that are directly attached with the testis are known as tunica vasculosa. Tunica vasculosa is made up of areolar tissue and also consist of blood vessels. ये जो होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ये बनी होती है एरियोलर टिश्यू की, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं. दिस ब्लड वेसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग मेल गैमेट. सेकेंड लेयर आर नोन एज द ट्यूनिका एल्बुजिनिया that are fibrous layer. They have capacity to contraction relaxation. इनके पास कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की कैपेसिटी होती है, और ये बनी होती है ट्यूनिका, ये बनी होती है फाइब्रस लेयर की. थर्ड मोस्ट लेयर आर नोन एज द ट्यूनिका वेगालिस. ट्यूनिका वेगालिस आर नोन एज द टेस्टिस पाउच. इसको लोग टेस्टिस पाउच बोलते हैं. दे आर ओनली हाफ कवर द टेस्टिस. एक ह्यूमन मेल के पास 2 टेस्टिस होते हैं, और जो टेस्टिस होती है 3 लेयर्स कवर होती है. ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका एल्बुगेंस एंड ट्यूनिका वेगालिस. ट्यूनिका वेगालिस टेस्टिस को हाफ कवर करती है. ये एक हार्ड लेयर की बनी होती है. ये लेयर हार्ड होती है, थोड़ी कड़ी होती है. नाउ दिस टेस्टिस covered with the epididymis. Now this epididymis directly attached with the Walsh difference. Now this Walsh difference also consists of number of pipeline on it. इसको पर हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग को यहाँ पे नंबर ऑफ पाइपलाइन दिखती हैं, जो कि Walsh डिफरेंस से होते हुए टेस्टिस के अंदर एंटर कर रही हैं. पहली क्या है? फर्स्ट है ब्लड वेसल्स, सेकेंड हमारी है लिम्फेटिक वेसल्स, थर्ड है नर्व फाइबर. ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई करेगी, लिम्फेटिक वेसल्स लिम्फ यानी कि वाइट ब्लड सेल सप्लाई करेगी, जो कि इसको बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन से बचाएगा. ब्लड अगर जाएगा तो यहाँ पे नरिशमेंट देगा, फूड प्रोवाइड करेगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ट्रांसफर करेगा. एंड नर्व फाइबर प्रोवाइड द सेंस. इफ एनी टाइप ऑफ मैकेनिकल इंजरी आर ऑकर्स हियर, देन द नर्व सेल give the sensory response to the testis and their surrounding area. Now this is the penis. Penis are covered with a loose skin fold. Inside the penis 2 different type of tissue are present that are known as the corpus cavernosa and corpus spongiosum. Corpus spongiosum present around the urethra. These are the spongy tissue that are present inside the testis, inside the penis, that are responsible for ejaculation of penis. ये penis के ejaculation के लिए responsible होते हैं. Corpus cavernosum present on both sides of penis. Now corpus spongiosum present around the urethra. At the time of ejaculation, these tissues are filled with blood vessels. Due to this, penis are erect out, and then a male are copulated with a female. As we know, the testis consist of near about 200 to 250 testicular lobe, and each testicular lobe consists of 1 to 3 seminiferous tubule. Now we are discuss about the structural organization of seminiferous tubule. Now I am going to discuss about the structural organization of seminiferous tubule. Seminiferous tubule are present around the testicular lobe, where the number of testicular lobe are connect with each other by the help of connective tissue. This is the structure of a single seminiferous tubule. Now here
the number of seminiferous tubule are directly attached with each other. These are different type of seminiferous tubule that are present inside the testis. So this is the single structure of a seminiferous tubule. This seminiferous tubule are attached with each other by the help of connective tissue, where the number of blood vessels are present that continuously supply the blood cell that helpful in the nourishment of developing male gamete. Now the nerve cells also present here, and specialized cells that are known as the Leydig cells. Leydig cell continuously secrete the sex hormones that are known as testosterone and androgen. Androgen and testosterone continuously secreted by the Leydig cell. This Leydig cell are responsible for activation of spermatogonia cell that undergo into the meiosis division and form the sperm cell. Now we are discussing about a simple structure of seminiferous tubule. The overall seminiferous tubule are covered with a fibrous layer that are made up of mostly elastin protein. Now this fibrous layer covered with the whole seminiferous tubule. Now the first layer that are present around the seminiferous tubule are known as the basement membrane. This basement membrane are consist of number of spermatogonia cell. They are divided continuously after the puberty of male, and this spermatogonia cell convert in the form of primary spermatocyte. Now primary spermatocyte convert to form secondary spermatocyte. Secondary spermatocyte convert to form spermatids. Now this spermatid convert to form spermatozoa. Spermatozoa also known as the sperm cell, but it is known as spermatozoa because here the sperm cell which are present that are not completely mature. यहाँ पे जो स्पर्म होते हैं वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाते हैं, ये इमेच्योर कंडीशन में होते हैं, इनके पास मोबिलिटी नहीं होती है, नॉन मोबाइल होते हैं, नॉन मूवेबल होते हैं. नाउ द specialized cells are present inside the seminiferous tubule are known as the Sertoli cells. This Sertoli cell provide the nourishment and food substance to the developing spermatozoa. Spermatozoa यानी कि sperm cell जब बन गई उनको हाईली न्यूट्रिशन चाहिए, लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिशन चाहिए. So this spermatozoa and sperm cell comes in contact with the Sertoli cell where they get nourished. तो ये हमारा एक सेमीफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम है. यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ सेमीफेरस ट्यूब्यूल क्लियर कट विजुअल हो रही है. ये डिफरेंट सेमीफेरस ट्यूब्यूल एक दूसरे से आपस में ज्वाइन रहती है कनेक्टिव टिश्यू के हेल्प से. अब यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू के बीच में नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड सेल्स पाई जा रही है जो कि इनको फूड सप्लाई करने का काम करेगी. यहाँ पे नर्व सेल्स पाई जा रही है जो कि सेंस प्रोवाइड करती है. एक्सेप्ट दिस द लिम्फ सेल्स आल्सो प्रेजेंट हियर दैट प्रोटेक्ट द testis and seminiferous tubule to the any types of bacterial fungus infection. एक पूरी seminiferous tubule कवर रहती है एक फाइब्रस लेयर की जो कि मोस्टली इलास्टिन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन के बने होते हैं. फर्स्ट लेयर जो कि seminiferous tubule में अपीयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये बेसमेंट मेम्ब्रेन नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया सेल लगातार प्रोड्यूस करती रहती है. आफ्टर प्यूबर्टी the spermatogonia cell undergo into meiosis division because a specialized cell are present here that are known as the Leydig cell. ये Leydig cell लगातार एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करते हैं. This testosterone give the signal to the spermatogonia cell to undergo into the process of spermatogenesis. अब यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बन जाएगा, स्पर्मेटिड से हमारा क्या बन जाएगा, स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा. स्पर्मेटोजोआ नोन एज द इमेच्योर स्पर्म सेल. यहाँ पे स्पर्म सेल मैच्योर नहीं है क्योंकि इनके अंदर मोबिलिटी अभी नहीं आई है, ये नॉन मोबाइल है. ये स्पर्मेटोजोआ सेल डायरेक्टली अटैच रह जाती है, किससे होती है, इस सर्टोली सेल से, जहाँ से ये नरिशमेंट लेती है. नाउ ऑन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर
I am discussed about the female reproductive system. I hope you understand better this chapter and this topic. If you have any problem, you can discuss your query in your school WhatsApp group. I try to solve your all problems as soon as possible.